How's everyone doing? मैं सबको अलाउ टू स्पीक कर दिया। आप लोग बताइए कैसा रहा आपका पुराना साल। यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक। कैसा रहा आपका पुराना साल और क्या प्लान है नए साल का? आवाज आ रही है ना? वॉइस वॉइस इज कमिंग प्रॉपर्ली? यू आर एबल टू हियर? आर यू एबल टू हियर? एक बार बता दीजिएगा। Hi, sir. Good evening. हाय Yes, हाय you're हाय। absolutely clear. गुड The इवनिंग, गुड sound is इवनिंग। clear. किसी को कुछ भी पूछना है पहले पूछ लीजिए, इसके बाद हम हमारी बात बताएंगे। Anybody wants to ask anything? So I want to ask for silver. Do you see any more downside or the Maybe, bottom is in? maybe it can come to us 27. If it comes, buy it. If there is nothing to buy, then leave it where it is. It will go towards 34, 35, even 40 also. But there is a probability of it coming till 27. Yeah, might be a possibility is there. If Oh, if how it the way? breaks, the last low was near 2770. So probably that low can be tested, can be, or may not be also. So any idea, sir? So the What idea? I didn't get you. You asked any idea after that. I didn't. I'm unable to hear you. What you told. hello? Can Hello. you hear me, sir? Yeah, yeah, yeah. Now I Yeah, can can hear. you hear me? Yeah. Uh, so my question was the way you analyze Nifty, like the way you time it, is there a way to time silver or no? Nothing like that. It's all. Everything is cyclic. So if you go and check the past cycles, you may able to gauge it. You have to do it on your own in the chart. It's nothing specific. It's all cyclic, seasonal, everything is like that. You have to study the cycle of bullions, you have to study the cycle of natural gas separately, you have to study the cycle of Nifty, Bank Nifty, all everything is different. Each stock is different. So if you Okay. have to And another study, you have to study fully that particular stock's entire cycle. okay. And another question I had, sir. Hmm, Uh, in base metals, hmm, when copper goes up, hmm. do the copper stocks like Hind Copper, do they also go up? Do they follow copper or they are opposite? How do they work? First thing, I think last time when I have told about it, see, everything depends on whether they are manufacturing or producing or they are importing. If Hind Copper, if they are into mining of copper or manufacturing of copper or however it is, then obviously when the copper prices will go up, they will also go up. But if they are into importing and then manufacture other goods, then obviously it will not go up. These are basic All cycle right. thing. Okay. Thank you so much, sir. Yeah. These two were my questions. Thank you so much. Wishing you a very happy new year in advance. Same to you, same to you, same to you and family. Thank you. किसी को कुछ पूछना है? Anybody wants to ask anything? Pri- Pritamda, can I ask? Yes, yes. You can ask. It's open mic for everyone. So you have mentioned
Yeah, is my voice audible? Yes, yes, yes. It is audible. Okay. So, Pritam, you mentioned about our final plan, Hmm. and buying I mean, creating that shots. So, I mean, do you see that 24093 or 24293 in this? I mean, coming 7 days or 24 to 93. Yes, it should come. And then only you should make the shots, not at the lows. okay, okay. Thank you. Because if you see the chart, if you go and see the chart, it what I mentioned is 233 EMA, and you see the low is exactly at there. People were talking about 200 EMA. I told about it. 200 EMA is nothing. Everybody follows it, so you should not follow it. Or at least I don't follow that. But if you see the low of November was at 233 EMA, today's low was also shy of maybe 2 or 3 points from 233 EMA. So there is a bounce which is expected, and that bounce should go towards 2442 or 24242, or maybe in that zone of 24 300 400. We'll see where it goes and where it starts getting rejection. Once we start seeing rejection, we'll get into our spread of March or January, or maybe February, not January. If we see that by 15th or by 10th it already reaches that place, so we have only 20 days left. So we may move it to February. So we'll see where it goes when it goes. So on that basis, we'll do. If anybody wants to play this up move, they can play. But I will not play in that way because this is just a retracement. On retracement, I don't play. Okay, thank you, Pritam. Huh. Wish you a very happy new year to you and your family. Yeah, same to you and your family. Thank you. And by the way, this entire thing is getting recorded. I will upload this video in YouTube also. Because when I'm discussing with you guys, I'm opening a chart and seeing the things and then discussing with you. So maybe you can relate it when you see the video. So batao, anybody, anything, I will just allow everyone to speak again. Hello. Hi, Hello. sir. Hi, hi, hi. Sir, one thing I just observed today. Mhm, जब आपका मैसेज आया था, even I was watching that, and I bought black calls today for mhm, the very first time. mhm, So just one thing, I mhm, booked those also. I just one thing I need to check with you. The volume footprint chart, which I am also following, the mhm, last half an hour deltas, if you see mhm. on your chart, those are negative volumes. So in what case, how we differentiate between like these are the real sellers or these are being trapped? How do we differentiate? See, in the last 15 minutes, na, ignore that totally, almost. If it's not, if it's in a range and the volumes are getting shedded, Yeah, like minus 1.45 million, minus 2.4 million. So if those things are going off, so it may happen that those are intraday players. They don't want to carry on positions, they are okay, closing off their positions. And if it's in a range, but if you see a range is broken out and the price has closed above last 15 minutes high or last 15 minutes low, so that you can correlate with it. But moreover, last 15 minutes up down you can ignore. Wherever you can see one thing is the live chart where the futures were rolled over, like futures long were happened. What you will do, I'll yes, upload this video. You go and check when I'm telling the same thing. You go and check in the video also. I'm mentioning what has happened. So last since 2.3 p.m. actually 2:55 p.m. there has been huge futures buying happened. And in the last 15 minutes, future OI change of 61,000 long positions has been added. And if you go and see similarly,
puts were unwinded also. Yeah, So that I was saying. that can be like they were covering, the put writers or put buyers were covering, call writers has covered. So we can't know in the last 15 minutes what might have happened. Actually, I don't know. I can't able to gauge, but that's why I see the futures chart also what it is happening. So if you go and see the futures chart, whole day there has been long build up, or maybe you can tell a short covering or whatever, but future longs were adding. Future longs were getting added entire day. There were not been a single point where there were future cutoff. So probably it can be short covering, or it can be long addition happening. It can be short covering because the few FIIs were more than 85% short. So we can think in that way that they are covering their position. Sometimes footprint chart may not give an idea in the last 15 minutes, 20 minutes actually. Yeah, volume footprint along with the auto trend line setup is amazing. Like it is Hmm. giving me amazing results. Yeah, yeah. Along Oh, with whatever you have told me and whatever you have told during the live stream, there's no secret about it. But the combination of these two is just like over the roof. It's a good yes, thing. yes, always. You can see what is happening immediately. You can take decision. Yeah, right. It was the month end, quarter end, year end, everything was Yes, visible. everything plus Yeah, I NAV was. management also, Yeah, yeah, yeah. plus Let's FIIs see. were extreme short. Yeah, So वो that's तो so. होना ही था. Right, right. And even like in that gas, I was not able to buy the jump, but I did sell on rise yesterday. I put that. Now बढ़िया. let's see. I am away from natural gas because too many geopolitical things are also Yeah, being no, developed. Like actually one should stay away from market for maybe 5 days, because huge yeah, volatility will be seen, or many movements may not be seen. Only thing, wait for the levels. If levels come, then start building up the position. Don't try to trade. It's for everybody. Don't try to trade every day. It will make your broker rich, not you. If you find a setup anywhere, anywhere, if you find a setup where your trade is getting confirmed, you are getting conviction, go for it, but go hedged. So in that way also you will be very careful what is going to happen and how am I going to adjust with the movement. yeah. Let's see. And when's your birthday, sir? Just to. बोल दिया ना मैं Uh, टॉरन हूँ. acha, okay, got it. लिख दिया ना Got it. सब पूरा, बुल से लायन Oh, तक. I missed the torrent thing. Okay, I know. But thanks. और किसी को अगर पता करना है ना, बहुत तरीके हैं, मैं बहुत लाइव स्ट्रीम में भी दिखाया हूँ, बहुत कुछ दिखाया हूँ. लोगों को पता करना, पता कर सकता है. देखो मेरे स्ट्रीम में ना बहुत कुछ हिडन चीजें भी रहते हैं, जिसको जो रहता है ना निकालना, वो निकाल लेगा. Yeah, yeah. Got it. एनीवेज. Okay, sir. Happy holidays, happy New Year to you and your family and your या UK. सेम टू यू एंड फैमिली. और 2025 का एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज है. इट्स अ स्क्वायर नंबर. इट्स अ स्क्वायर Mhm. ऑफ 45. Yes. ठीक है. देन इट इज ऑल्सो क्यूब ऑफ, addition of cube of all the numbers from 1 to 9, not 0, from 1 to 9. So Mhm. 2025 is a magical number which comes in quite a number of years. सेंचुरी में आता है. नेक्स्ट वाला आएगा 2116 पे, और पिछला वाला आया था 1936 पे. So 2025 is very special year,
एंड आई थिंक एवरीवन शुड एबल टू मेक मनी अच्छे से। आप सबके हेल्थ, wealth, everything should go as squares or cubes of what you have. जैसे साल है वैसे ही आपका साल भी जाना चाहिए. So you have to hedge properly and work, and even if you hedge and work, you will make money. So don't haphazardly do stuffs. That I always will say. बताइए और किसको कुछ पूछना है, प्रीतम भाई, बताना है. हेलो, हाय. कैसे हो प्रीतम भाई? हम तो बढ़िया है, हमेशा बढ़िया रहते हैं. सर मैं पूछ रहा था जो आप बढ़िया ही रहने चाहिए सर। बताओ. सर मैं पूछ रहा था जो आपने आज 10-13 का जो डाला था सर, ऐसा सेटअप मतलब अभी तक मैंने तो कहीं देखा नहीं है जो टाइम भी प्रिडिक्ट कर लेते हैं। वो एक्सपीरियंस बहुत करो ना, अमेजिंग था सर। जो आज एक्सपीरियंस करो ना. 10-13 को जो लो बना है वो हम्म. वापिस वो देखो हमेशा रहता ना, मैं शेयर करता हूँ ना, सर उसके लिए टाइम क्या शेयर करता हूँ ना, मतलब शेयर करता हूँ ना मैं टाइम हमेशा. वो टाइम पे देखो कभी ना कभी होता है, और जब वो टाइम के हाँ साथ सर प्राइस मैच होता है, दैट गिव्स यू अमेजिंग रिजल्ट्स. प्लस उसके साथ डेटा भी मैच होना चाहिए. और कल ही मैंने लिख दिया था डेटा देखने के बाद, भाई शॉर्ट तो करना मत कल गैप डाउन में, या गैप डाउन में गया तो ट्रैप बनेगा. गैप डाउन हुआ तो ट्रैप बनेगा. अगर वो फ्लैट खुलता आज तो ट्रैप नहीं बनता, तब हम बहुत नीचे जाते. बट गैप डाउन देके उसने मेरा व्यू का यस सर। कंफर्मेशन कर दिया था. और उसके बाद मैंने जब टाइम पे देखा, अच्छा तो ये टाइम आ रहा है, चलो सब मैच हो गया, एवरीथिंग गॉट मैच्ड. अब ये लो अभी मे बी यस सर। नेक्स्ट 5 दिन तक ना कटे, ये लो नेक्स्ट 5 दिन तक कटेगा नहीं. यस सर, यस सर। तो वही हुआ 23,500 उन्होंने इतना आसानी से तोड़ दिया, तो फिर ऐसा लग ही रहा था लिक्विडिटी लेने आ रहे शायद। हाँ, वही तो ना, क्या सबको बता। सबको डरा देगा ना. पुट राइटर इतने भर भर के पुट राइटिंग करके बैठे हैं, हमारे रिटेल भाई साहब सारे बुलिश होके बैठे हैं, तो उनको तो काटना है ना. अब काटने के बाद मार्केट ऊपर गया. सर 23,500 के नीचे, हाँ 23,500 के नीचे तो मतलब बहुत लोगों ने शायद काटा भी होगा। काट दिया ना, निकाल दिया. बहुत प्राइसेस, मतलब बहुत स्टॉक्स के प्राइसेस नीचे गए. मैं तो उसमें बहुत सारे कुछ स्टॉक्स को उठाया भी, क्योंकि उनके, आप अगर लास्ट लाइव स्ट्रीम का, आई थिंक फ्राइडे का लाइव स्ट्रीम का लास्ट सेशन देखोगे, उसमें बहुत सारे स्टॉक्स के मैंने लेवल्स भी दिए थे मार्क करके, कि मैंने अलर्ट रखा था, और वो सारे अलर्ट्स आज या कल में ट्रिगर हुए हैं. तो उसमें से कुछ जो ट्रिगर्ड हुए वो ओएनजीसी का था, हिंद कॉपर का था, कोल इंडिया का था, एंड एक बार देख लेता हूँ. नहीं, ये चीजें काइन था. अमाइन और बालाजी अमाइन भी हाँ, ट्रिगर हो गया। बालाजी एमाइन कल ट्रिगर हुआ था. तो दोज थिंग्स आई हैव ऑलरेडी टेकन. ठीक है, तो मैं अभी बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे लाइव स्ट्रीम में ये सब नहीं बताना है. मैं प्राइसेस इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता, और मैं सेबी के रडार में नहीं आना चाहता. तो ये सब मैं पहले लाइव स्ट्रीम में बता चुका था कि कहाँ पे लेना है. तो किसी ने अगर नोट किया होगा तो उन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा. अब आगे जाके अगर ये प्राइसेस फिर से रिविजिट होता है, और वो भी संक्रांति के टाइम के आसपास, तो आप लोग जो मिस किए हो उसको फिर से लेना. और अगर प्राइस उन सब स्टॉक से नीचे जाता है, और नीचे जाता है, मान लो 5% और नीचे चला जाता है, तो भी ऐड करना. क्योंकि अभी अगर ऐड नहीं करोगे आप लोग, तो ऊपर जाके ऐड करने का आप लोग को हक नहीं बनता. ये मैं हमेशा बोलता हूँ. भाई नीचे आते मार्केट में आप अगर ऐड नहीं करोगे इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मार्केट टॉप पे रहेगा, उस जगह पे खरीदने का आप लोग का हक भी नहीं है. आप लोग मतलब जो भी करते हैं एकदम टॉप पे खरीदते हैं, और नीचे आए तो बेचते हैं. आज
आजकल कितने लोग बेच रहे, they are exiting, whereas we have not cut November low also. अगर मंथली चार्ट ओपन करके देखोगे तो we have not gone to November lows also. So maybe हम लोग उस नवंबर लो को तोड़े in January and then we close back again upside. We'll see. हमारा तो टारगेट है ही 22,500 का, 22,000 2222 के आसपास भी आ जाए तो अच्छी बात है। बट आप लोग शुरू कीजिए इन्वेस्टमेंट करना। जनवरी में आप लोगों का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। नीचे आ रहा है, खरीदना चाहिए। जो भी आप इंट्राडे ट्रेड्स कर रहे हो, उस ट्रेड के पैसे से आप स्टॉक्स खरीदो, अच्छे स्टॉक्स खरीदो जो मैंने ऑलरेडी लिस्ट ग्रुप में दिया हुआ है। दोज आर ऑल लार्ज कैप स्टॉक्स, कोई चिंदी पिंदी स्टॉक नहीं है, पेनी स्टॉक नहीं है। आप लोग खुद से भी आप लोगों का एनालिसिस करो, स्टॉक्स निकालो एंड स्टार्ट पुटिंग स्मॉल मनी ऑल्सो इन स्टॉक्स। क्योंकि ये जाके आगे जाके 2027 में आपको जो रिटर्न देगा, आपको निकालना भी नहीं है ये, बिकॉज what we have made is 4 and 5. हम लोग अभी 4 के लास्ट लेग में है। सो 4 के अगर लास्ट लेग में है तो 5 आप सोचो कहां तक जा सकता है। हम लोग ऑलरेडी बात किए थे ना, 4 के लास्ट लेग की बात किए थे, राइट। 4 आएगा प्रोबेबली 22,200 तक। इसके बाद अगर 5 जाता है वही 33,333 तक जा सकता है, 33,333। एंड उसके बाद कोई बड़ा सा करेक्शन आएगा। जो लोग 18,000 12,000 का वेट कर रहे हैं, 12,000 तो मुझे डाउट लग रहा है, 18,000 आ सकता है बट वो अभी नहीं आएगा। और ये मैं लास्ट 5 महीने से बोल रहा हूं, 18,000 अभी नहीं आएगा। हाँ 22,000 आ सकता है, 20 भी नहीं आएगा, 22 आ सकता है। और 22 के बाद हम 28-30 की जर्नी भी देखेंगे, और वो एक्सटेंशन हुआ तो और जा सकता है, वट एवर इट इज। तो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए। इफ यू हैव नॉट डन, डू इट। अलोंग विद दैट bullions also, you should not miss out bullions, because if you see previously, आप कुछ डेटा भी देखोगे ना, तो bullions and equity both go hand in hand in a larger time frame. आप छोटे टाइम पे देखोगे 3 महीने का, 4 महीने का, तो आपको लगेगा अरे इक्विटी के अगेंस्ट में है। बट इफ यू लुक एट लार्जर टाइम फ्रेम ऑफ 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स, बुलियंस गो हैंड इन हैंड विथ इक्विटी। तो आपके पोर्टफोलियो में वैसे ही रहना चाहिए, बुलियंस भी रहना चाहिए, इक्विटी भी रहना चाहिए। वो आपके वेल्थ क्रिएशन का काम करेगा। तो बताइए अभी एनीथिंग। और हाँ, चिंदी पिंदी स्मॉल कैप्स में ऐड मत कीजिएगा कुछ भी। लुक फॉर लार्ज कैप, लुक फॉर लार्ज मिड कैप्स, बट डोंट लुक फॉर स्मॉल कैप्स। अभी स्मॉल कैप्स आपको कोई भी रिटर्न नहीं दे सकता। वो मे भी ऊपर थोड़ा जाएगा बट इट मे नॉट गो एज इट इज इंटेंडेड टू गो। वो कर चुके जो भी करना था, लार्ज कैप के अगेंस्ट में उसका स्पीड बहुत कम होगा। So look for large cap stocks and start investing in those kind of things. सर मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म। कल मेरा अल्काइल अमाइन और बालाजी अमाइन दोनों का ट्रिगर हुआ जीटीटी। ओके। अभी आपने बोला कि स्मॉल कैप में नहीं करना है, तो ये तो स्मॉल कैप है, दोनों केमिकल हैं। पूरा नहीं करना है ऐसा तो नहीं है ना, मतलब आई ऑल्सो हैव गिवन द लिस्ट, राइट। मेरे हाँ लिस्ट हाँ में भी तो था ना वो, तो मैं निकाल के पूरा, आप अगर इस लिस्ट को अगर देखोगे, बालाजी एमाइज भी है, अल्काइल एमाइज भी है, सब मिला के लिस्ट बना है ना 47 स्टॉक्स का, जो मैंने आप लोगों को दिया था। उसमें से भी आप अगर देखोगे
वो केमिकल में आएगा, वो भी 5% के आसपास ही होगा टोटल 100% में से भी, और उसमें से भी अल्काइल विल बी वेरी वेरी मिनिमल, बालाजी और ये। यस सर, यस सर। सो आपको वैसे ही डिवाइड करना। अब जैसे मैंने देखो, मैंने 47 स्टॉक्स दिया, मान लीजिए 50 स्टॉक्स दिए, आपके पास 50,000 ही है, तो 10,000, अरे 1,000 रुपए करके डाल सकते ना, वैसे ही डालने के लिए मैंने बोला था कि ओके, आप ओके। अगर पूरा कैलकुलेट करके रखे हो मुझे 50,000 डालना है या 1 लाख डालना है, मैं 2,000 करके हर स्टॉक में डालूंगा, क्योंकि हमें नहीं पता वो मिड कैप, लार्ज मिड कैप या स्मॉल कैप, ये छोटे स्मॉल कैप है, उसका मतलब अगर मूव किया तो बहुत अच्छा मूव करेगा क्योंकि वो स्मॉल कैप में है, बट उसके साथ लार्ज कैप भी है ना आपका, स्पेशलिटी केमिकल्स भी है ना, अपना एशियन पेंट्स भी है उसमें। अगर केमिकल की बात करें, अगर मान लो केमिकल चला ही नहीं, हमारा ऑटो है, आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल है, फिनांस है, मिनरल्स है, एनर्जी सेक्टर है, सब कुछ है ना, मिक्स है वो। सो इट शुड नॉट, यू शुड नॉट फोकस स्पेसिफिकली कि इसमें से ये मैंने चूज किया, ये रखा। आपको अल्टीमेटली जाके ये सारे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होना है नेक्स्ट लेग ऑफ रैली के लिए, और जहां जहां ट्रिगर होगा उधर उधर आप ऐड करते रहिए। बट ऐड कितना करेंगे, वही जो आप 2,000 सोचे हो, 2 लाख सोचे हो या 20 लाख सोचे हो पर स्टॉक का, उस हिसाब से ही ऐड करना है, इक्वली डिवाइड करके, तो ही आपका पोर्टफोलियो सही से बनेगा। सो एनीथिंग? Hey, Pritam. Good evening. गुड Yeah, this इवनिंग। side. I'm joining this live stream first time. I've been following you for quite a lot of time, like maybe 6 to 8 months, I would say. ओके। I would like to thanks a lot. I've I've followed channels, but no other channels, like so they have not given this much clarity, like how to take a hedge trade, how to like why we are taking that. So much detail like you're giving. It's very helpful actually. Kind of learning. That's what like I've been like since I joined, I'm learning a lot from this channel. Thanks a lot for that. Very nice to hear that you are Yeah. getting helped, you are learning something. I'm These yeah. So these may not I have also been told to others, like people would have taken money to teach these, but they also would not have taught all those things. I know exactly, about and I've it. seen your history message, like how you came through this and how many years you have been, and like the same way I try to like go through that the zero diversity and so many YouTube channels, so many that sensible videos, thetas. Like I've spent a lot of time actually going through all the stuff. Like end of the day, like I was not able to like spot like where I'm, what I'm doing. Like I've been gone through lot of steps, but end of the day I'm not able to execute it properly. That's Yeah. the like I seriously, like after following you, I'm kind of getting some confidence, and really like it's helping a lot in determining like what we need to be doing, and what is that how to read the data basically. First So thing, these steps. I'll say that, Mhm. see, everybody, there are so many traders in the world, so many in our market also. They follow something. Like normally, we should think from their perspective what they are following, and then we should use our brain that what should we not do what they are doing. Right. Exactly. You have to think. See, when you are playing a chess, what you will Yeah. be thinking that what the other person would be putting a chess piece, and I should have think 5 moves ahead itself. Like Exactly. if he puts that, what should I put? So my 5 moves should be ready for his 1 move. Similarly, he also would be thinking like that. But in here market, the other person are dumb persons. We should be following the smart people who are Right. putting their full money
to earn something, but not for through those dumb persons. We should not follow them because they are following something in a different way. So we have to find out where we get an edge. Maybe what I'm showing, this has worked for me since I'm into trading. I have been in market since 2007, but full fledged trading I have been from since 2017. So we have to think from the perspective of others. Even I should also think like them, but then I have to think like what they are doing same way. I should not do as different. I should do as a different thing Right. where I can make my Right. money. Exactly. So the data reading, like that is obviously like nobody, this much openly, like nobody have told actually how to read and how to like go with them and how to align our trade. Because like as you say, when market goes to the top, everyone will say go and like buy these stuffs, those stuffs and all. But you like put a specific message saying that like this is done, like stop all your portfolio building right now. And you are also guiding like when exactly to build the portfolio. Yeah. Even like I suggested, after seeing your channel, I suggested my brother and my relatives like who asked me. Mhm. So that is like helping them as well. Very good. Nice Yeah. to know about And it. yeah, thanks one more time for that. And I wanted to check one specific thing. Mm, You used to tell about the silver price. mm. You mentioned $1,000 and you repeatedly told $1,000 in 10 years. I Yes. used to see that message multiple times, like you are referring as $100 or $1,000, and you specifically wrote one more day saying that it's $1,000, not $100. Yes. Yes. So I just wanted to understand what is that specific thing, like you're so much interested in $1,000. Like even like from my little understanding on the seeing the patterns and all, I'm not seeing like it's going there. Like just for my understanding, I'm asking See, how you're tell me saying. one thing. Yeah. Market, stock market itself, let's say, stock market has been at 250 rupees also, right? Sensex was at Right. 250 rupees, right? Now, Yeah. Sensex is at 88,000. Right. If they can go, why can't silver and gold? Okay. Okay, so my First thing. defending point was, Mm, mm, even if silver is going to be industrialized and so many things like EV is going to like silver is going to be the driver, mhm, obviously like there would be a supplement metal for that. It's not that only silver is going, might not be going to be useful going forward, right? Like mm. my understanding basically. So It's if nothing that is like the that. case, uh-huh, Silver is used in many other stuffs yeah, where yeah, it cannot be supplemented. Silver only will be required for those. And specifically, they are used in chip making and mm-hmm, warhead making. So okay, I have given a hint. And this one, yeah, I think last time also, 2 months back, I have discussed the same thing. When the demand rises, the price will not see bounds. It will not get binded. It will mm, break away of everything. And even if you see the silver chart, it has been making higher highs and higher lows. So at some point of time, it will break out. It may take years. It is not so easy that it will go in weeks or something like that. Even reaching yeah, 100 also may take years. But probably in 10 to 15 years. 10 years, though I'm sure, but still I'm telling, taking buffer, it may reach mm-hmm, very, very high prices. And if you compare silver with gold, mm-hmm, gold, if you see the chart, gold almost has broken out. It's the move has been spectacular. Silver has not moved in the same way. Go and compare both the chart. You will have your yeah, reason. Silver, gold has moved. Let me say, since we know till now, it has moved 6,441%. All right. mm-hmm, yeah, If we see same in silver, see when I'm talking to you, I'm taking showing the chart also. Next, I'll upload this video. Just go and check this out.
next. yeah. Okay, if we put it as that 6441%, it usually should be near $100. Okay. Silver should be near $100, but it is very undermined. So Yeah, yeah. I see that accumulation is going on in this. If we compare both together, gold and silver, next leg of rally in bullion should be in silver, not in gold. The rate, the rate of change in which it Mhm, should move, it should be in silver, mhm. not in gold. Got it. Yeah. Thank you, And Pritham. I And have mentioned about warheads, so you know why warheads will be used, for what yeah. reasons they will be used. Hmm. So be prepared for that also in other terms. Got it. And one more thing regarding this commodity options, like when I do this crude or nat gas option, Mhm, uh, like when we're doing spread, like put spread or call spread. mhm, So I have this mystery like in this natural gas basically. mhm, So when we buy in the money put and out of the money sell, mhm, ideally like the in the money should move faster because it has much mhm. delta, right? Like out Right. of the money should move, but this nat gas it's making me go mad, like it's going in the same rate what is that out of the like in See, the money is nat moving. gas is the most manipulative commodity. All right. Okay. It doesn't follow the same Greeks as it's followed in Nifty, Oh. because it's the movement is like that, right? So the Greeks will not be there, and there is not much liquidity also provided for that. These options are just for the exchange to play, or maybe for the small players to play. So that's the reason I always tell, for natural gas and crude, use Hmm. futures and use the option as hedging for those Right. futures. Okay. Don't Got it. play in spreads, because in spreads, most of all, you will not get the margin benefit. Only thing Hmm. is that you should use it to hedge. You should use the options to hedge your position what you have taken. That should be used in at least natural gas and your crude. Got it. Okay. I was like mad on that, like why it is moving in the same way. Yeah, now I got the answer. They are Okay. manipulate. Nat gas is the most manipulative commodity. Got it. Yeah. Yeah, The Pritham. day Thank it you. moves 20% Uh-huh. without anything, Yeah. just putting a news, so just can imagine. I was also expecting it to move, but I didn't expect it to move that much. But yes, that $4 price has reached, and you see after Yes. $4 what has happened. Yeah. It's the most manipulative component. All right. Yeah. Thank you. Thank you, Pritham, No for your issues. inputs. Yeah. Thank you so much. No issues. Anybody, anything, किसी को पूछना है कुछ? पूछ लो, आप लोग के लिए आए हैं हम. Hi Pritam, Mihir सर here. अभी आगे का क्या स्ट्रेटेजी लेना चाहिए? हाँ, हेलो, हेलो. Yeah, hello Pritam, Mihir बात हाय कर रहा हूँ. हाय 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 मिहिर. हाँ, प्रीतम सो आई वाज ये थोड़ा मैं तो नॉर्मली ये करता हूँ क्या बोलते हैं पोजिशनल का हम्म, करता हूँ ट्रेडिंग, ठीक हम्म, है. हम्म. तो लेकिन मुझे थोड़ा टेक्निकल सीखना है, तो आई मीन इफ यू हैव सम मटेरियल कैन यू शेयर इट टू मी, सीखने का तो स्टडी आप मटेरियल. YouTube से देखो, जो भी है ना सब कुछ YouTube से ही कर सकते हैं. मैंने भी ऐसे ही सीखा, आपको पता है. तो आई डू लाइक दैट. अब सिखाने के लिए तो मेरे पास ऐसे तो मटेरियल है नहीं. फ्रैंकली बोलो, मैं जो भी सीखा हूँ यूट्यूब से ही देखा हूँ, देख के सीखा हूँ. बट हाँ, वो बहुत टाइम हुआ है, 2017 से 2015 से वही सब करते 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 अभी इधर है. तो आप एनी YouTube में भी स्पेसिफिक. टेक्निकल एनालिसिस डालोगे ना, ट्रेंड लाइंस का, या मोस्टली वो लोग सिखाएंगे बॉलिंजर बैंड, ये RSI एंड ऑल दोस थिंग्स. आप RSI के बेसिस पे भी ट्रेड कर सकते हो पोजिशनली. आप वो कोई चार्ट्स वीकली मंथली में देखो, आपको वो दिख जाएगा.
यानी कोई स्पेसिफिक यूट्यूबर या जो मतलब अच्छे से बता रहा हो, समझा रहा नहीं, हो, ऐसा मैं कोई? सबको दिखता हूँ, मैं सबको अभी भी देखता हूँ। मैं अभी भी रैंडमली जो भी आता है मैं देखता हूँ, बंदा क्या बोल रहा है। अगर खराब बोल रहा है तो एग्जिट, अच्छा बोल रहा है तो सुन के दिमाग में रख देता हूँ। तो आप मतलब स्पेसिफिक, देयर इज नथिंग स्पेसिफिक। आप रैंडमली, आपको नहीं पता कि कितने अच्छे चीजें आएंगे, बट वो बंदा आप देखते देखते अगर देखे ना, कोई बंदा प्रमोशन कर रहा है अपना ग्रुप का, उस चैनल से हट जाइएगा। सिंपल। ठीक है। मैं तो और ऊपर से मैं देता भी हूँ ग्रुप में, कौन से स्टॉक्स पे ध्यान रखना है, कौन से प्राइस पे। आप देखो आपके हिसाब से उन स्टॉक्स में आपके पसंदीदा प्राइस क्या है, क्योंकि हर थीम हर टाइम पे काम नहीं करता। मिड कैप का कभी टाइम आता है, स्मॉल कैप का टाइम आता है, अभी लार्ज कैप का टाइम है। तो अभी आप देखोगे तो लार्ज कैप या मिड से लार्ज कैप में काम कीजिए, या जो मैं थोड़ा बहुत इस बार बहुत कम ही स्मॉल कैप दिया हूं, तो वो स्मॉल कैप में आपके प्राइसेस अगर आते हैं तो वो देखिए, उसमें अगर कर सकते हैं तो आपके प्राइस के हिसाब से मिल रहा है तो। ओके, ठीक है। ठीक ओके, है। थैंक्स हाँ। प्रीतम। या हाँ। सर सिल्वर को क्या लॉन्ग रन के लिए प्रीतम बाय भाई, ईटीएफ एक्युमुलेट किया जाए क्या? सिल्वर को तो मैं कब से ही बोल रहा हूँ, जब भी वो $30 के नीचे आता है, आप हम्म। बल्क में उठाओ उस, आइदर ईटीएफ्स उठाओ या आप दुकान से खरीद के लेके, हो सके तो वो फिजिकल रखो घर पे। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। या हाँ, कोई पूछ रहा था, somebody was asking something। प्रीतम भाई, हाँ बताओ। हेलो। हेलो हेलो। हाँ सर, अनेबल मैं टू। बोल रहा हूँ उस दिन अपन ने लाइव लाइव सेशन पे 3 सिनेरियो। हेलो। हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है, बताओ। हेलो। हाँ हाँ, अब मैं बोल रहा हूँ लाइव सेशन में 3 सिनेरियो डिस्कस किया था। जो थर्ड सिनेरियो था यू टर्न का, के जो गैप अप होके वापस रेंज में एंट्री करेगा तो यू टर्न होके फेक ब्रेकआउट होके चला जाएगा। हम्म। तो ये सब जो अभी जो हुआ है, जो आज गैप डाउन होके जो वापस रेंज में वापस जा रहा है, तो ये अभी मतलब वापस रिटर्न मार सकता है या अभी ये डायरेक्ट रिट्रेस करने जा रहा है पूरा? वो हमारा जो लेवल है क्या उधर लगता तक है सर जाएगा। आपको? हमारा जो लेवल इतने दिनों जाएगा से तो वही वो मेंशन कर आपने रहा हूँ, डिस्कस किए थे उस टाइम पे के। वहीं पे जा रहा है। हाँ। जब तक नवंबर का लो नहीं कटेगा, हमारा लोअर लेवल नहीं आएगा। तो वो उसी रेंज में खेलेगा। अभी धीरे धीरे एंगल बना रहा है। हम लोग नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम जब करेंगे, मे बी 2 तारीख को करेंगे, 2 या 3 तारीख को जब करेंगे, तब हम देखेंगे, लाइव में देखेंगे कि क्या है, कैसा है, हाउ इट इज गोइंग, हाउ इट इज मूविंग। ओके सर, चलेगा। ठीक है। सो एनीवन, और किसी का है? नहीं है तो फिर आई विल स्पीक। हाँ प्रीतम भाई। हाँ बताओ। हाँ, एक बात मुझे पूछना था, ये हेजिंग का एक बता सकते हो क्या? स्टॉक्स का फ्यूचर्स का मैं अभी शॉर्ट किया है। हम्म। हाँ, कोई भी एक एग्जांपल बता दो। अभी कैसा, अभी जैसा ही मैं पोजीशन बनाऊंगा हम्म। तो मैं सोचूंगा कि मैंने हेज किया है, हम्म। अभी शॉर्ट किया है फ्यूचर, हम्म। तो मैं कॉल लूंगा उसका हेज ओके। करने के लिए। राइट। तो माइंड में ऐसा आएगा कि अभी नीचे जाएगा तो कॉल का प्रीमियम भी कम होगा। हम्म। तो अभी जनरली कब ये करना चाहिए ने, सीरीज का पहले करना चाहिए कि 5 तारीख के बाद में करना चाहिए कि कभी भी कर सकते हैं, कभी पहले भी, एक्सपायरी जब के 1 वीक जब पहले? भी आप पोजीशन बना रहे हो, आपको लग रहा है हम्म। कि वो ऑपोजिट जा सकता है, तो आपको हम्म। इमीडिएटली हेज ले लेना है। उसके बारे में तो एंड सोचना ऑफ भी द। नहीं। और हेज क्या होता है ना, इंश्योरेंस होता है। हम्म। हम लोग जो लेते हैं ना, ओके। मान लीजिए गाड़ी के लिए, गाड़ी खरीदे, अब हम्म। गाड़ी को हम्म। इंश्योर करना है। अब मान लो वो हम्म। 10 साल वो गाड़ी ठुका ही नहीं, कहीं पे गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ही हम्म। नहीं है, हम्म। बट हम फिर भी इंश्योरेंस पे कर रहे हैं ना उसका, हर साल ओके, इंश्योरेंस पे समझा। कर हाँ। रहे हैं ना। तो हेज वही है। हम्म।
हेज है आपने जो पोजीशन लिया है उसका इंश्योरेंस, ओके कि अगर तो मान लो पुट आपने शॉर्ट किया है कुछ चीजें और नेक्स्ट डे वो उल्टा 10% ऊपर खुल जाता है, तो राइट आप तो बहुत बड़े लॉस में होंगे, करेक्ट। अगर वो कॉल रहता है तो कॉल आपको एटलीस्ट आपका लॉस को मिनिमाइज कर देगा, नियरली 70% लॉस कम कर देगा। बरोबर तो वो इंश्योरेंस, वो हेज लेना, ये जब भी ले रहे, आप फ्यूचर का करो या कोई भी शॉर्टिंग करना है, मतलब ऑप्शन को शॉर्ट कर दिए या फ्यूचर्स को शॉर्ट कर दिए या फ्यूचर्स लॉन्ग कर दिए, फ्यूचर्स के में तो हमेशा लेना है। और अगर ऑप्शन सेल कर रहे हैं, जैसे पुट सेल कर दिए या कॉल सेल कर दिए, तब भी हेज लेना जरूरी है फॉर सेविंग माई पोर्टफोलियो, सेविंग दैट पोजीशन। वो पोजीशन को बड़े लॉस में जाने से बचाने के लिए हमको हेज लेना चाहिए। ओके मगर एंड ऑफ द डे करना है कि तुरंत थोड़ा नहीं सा नहीं, लगे तुरंत कि तुरंत मेरा अपोजिट मैं बोलता हूं कि तुरंत आपको पोजीशन लेने से पहले करना है। मैं ये भी बोलता मैंने हूँ, दोनों साथ में ही कर लो हाँ दोनों साथ में करना है। आप मान लो आपका एक प्राइस आ गया, मैं आज पावर ग्रिड की बात करता हूँ, मान लो पावर ग्रिड मुझे 306 पे खरीदना है, ठीक है, मैंने लगा ओके के रख दिया, अलर्ट बज गया। अब मैं पावर ग्रिड को फ्यूचर्स खरीदने जाऊंगा, उससे पहले मैं पुट खरीदूंगा उसका, ओके उससे पहले उसका पुट खरीदूंगा, मे बी पुट मिलेगा और तब तक वो थोड़ा और नीचे मैं एक्सपेक्ट करूंगा 306 से 305.9 305.7 पे आए, तब मैं फ्यूचर खरीद लूंगा। तो पुट भी मेरा थोड़ा हरे में रहेगा, तब फ्यूचर भी हरे में रहेगा। अब उसके बाद वो कुछ भी करे, मेरा हेज हो गया टोटली। और हेज के बारे में आई थिंक मैंने ग्रुप में लिखा हुआ है कि किसके साथ क्या हेज करना चाहिए, वो आपको एक बार ढूंढना पड़ेगा। या पुनीत भाई ने भी एक बार उसको टैग किया था उस हेजिंग चीज को, तो आप एक बार पुनीत भाई के नाम से भी हमारे कन्वर्सेशन सर्च करेंगे में सर्च करोगे तो मिल जाएगा हेज का, कि किसके साथ कैसे मैं हेज करना है। अभी मगर आपने ये पूरा पावर ग्रिड का बताया तो पुट कौन से प्राइस का लेना चाहिए 300 का 2 स्ट्राइक नीचे या 2 स्ट्राइक स्ट्राइक ऊपर। 300 के 295 हाँ, आएगा मैं एग्जाम्पल दिया क्योंकि अभी दिमाग में वही है, ओके मैं तो कैश में खरीदा, वो अलग हाँ बात है। दिमाग में ओके वही है समझ क्योंकि लेटेस्ट वही था, लास्ट वही था। हाँ ओके नहीं ये तो ठीक है अभी तो ये आप बोल रहे हो कि गैप अप खुल जाएगा 10% तो ये करेंगे मगर दूसरे दिन जैसा ही हम ऐसा होता नहीं है तो मैं साइकोलॉजी आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ कि ऐसा नहीं होता है दूसरे दिन वही फ्लैट खुलता है वही प्राइस पे ठीक तो है, क्या होगा कि जैसा ही वो प्राइस नीचे आए बढ़ेगा आपका पावर ग्रिड के केस में तो पुट का प्रीमियम भी घिसेगा तो माइंड घटेगा। में क्या आता है कि मेरा तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है भाई वो सोचना दोनों ही घिस नहीं, रहा है आपको जब भी हेज लेना वही सोच के लेना ये जीरो बनेगा। ओके जो प्रीमियम जो है एच वाला वो वाला हाँ वो जीरो बनेगा ही, क्योंकि वो आप इंश्योरेंस ले रहे हो। मैं सही वही एग्जांपल दिया ना गाड़ी का, ओके आप गाड़ी का ओके हाँ हर राइट समझा साल प्रीमियम भरते हो, बट उसका यूज ही नहीं होता ना। हम्म कोई चाहता नहीं, ओके नहीं ना कि गाड़ी जाके ठुके कहीं पे, nobody wants that। हम्म बट फिर भी ओके अगर ठुक जाता है या कुछ हो जाता है तो हम्म उसका टेक केयर करने के लिए इंश्योरेंस है, कि मेरे पॉकेट से इतना खर्चा ना करना ओके पड़े, है ना। हेज को वैसे ही देखना है, हेज को वैसे ही सोचना है कि ये इंश्योरेंस है। ओके नहीं अपना माइंड ऐसा होता है कि मेरा प्रॉफिट में ही जाना चाहिए ऐसा ही माइंड होता है हमेशा नहीं वो ये तो मैं रखो सबकी मत, बात कर रहा क्योंकि हूँ हमेशा हम्म देखो, हमेशा हर ट्रेड प्रॉफिट में नहीं जाता, ठीक है, हर ट्रेड ग्रेट नहीं हाँ जाता। बट हाँ, जब वो हम्म ऊपर जाएगा, ठीक है, मान लो मैं पावर ग्रिड की बात करता हूँ, पावर ग्रिड मान लो वो ऊपर जाता है, 5 दिन में तो जाएगा, हम्म 5 दिन में मे भी मेरा पुट हम्म थोड़ा गल जाएगा, 100% तो नहीं गलेगा, राइट। तो ऊपर जब हम्म जाएगा तो फ्यूचर्स मुझे जितना गला है उससे ज्यादा ही प्रॉफिट दिखाएगा ओवरऑल में। एटलीस्ट कम प्रॉफिट दिखाएगा लॉस तो नहीं दिखाएगा हाँ वो लॉस, केस में हाँ लॉस बहुत मिनिमम। इवन मान लो आपके ऑपोजिट में चला जाता, मान लो 306 पे खरीदा, वो चला गया 290 280 चला गया, तो भी मेरा लॉस बराबर है फिक्स्ड है।
12,000 15,000 का ओ- ही लॉस फिक्स्ड है पर लॉट का। ओके, ठीक है। ठीक है। हाँ। અને हमको प्रॉफिट का एंगल से सोचने का ही नहीं है, वो नहीं जो कभी बचाने नहीं, के एंगल देखो से सोचने का। हमारे हाथ में प्रॉफिट नहीं है, हमारे हाथ में है कि हम लॉस कैसे मैनेज कर सकते हैं, वही हमारे हाथ में है। मगर इसमें अपना लेवल एकदम मैंने परफेक्ट तो नहीं बोल सकते, मगर आसपास, एक्यूरेट होना आसपास, चाहिए। आसपास होना चाहिए बस। मतलब आप आसपास, हाँ प्रीवियस ठीक है। देखो, आपको वो भी देखना है कि मैं, मेरा मन किया मैं जाके उठा के डाल दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको देखना है कि ओके, हाँ पहले वो से नीचे नक्की। आ रहा है, चलो वो क्या एंगल हम्म, बना रहा है, वो सपोर्ट बना रहा है, सपोर्ट पे आ रहा है, ठीक है मैं सपोर्ट पे थोड़ा ट्राई करता हूँ, हो सकता है वो नीचे चला जाए, तभी तो हम एवरेज हम्म, पिंग की भी बात करते हैं ना, कि मार्टिंगल सिस्टम में एवरेज ओके, करते हैं। तो वैसा भी होना चाहिए, वैसे भी रखना चाहिए कि ये नहीं कि मैं, ओके। मेरे पास 10 लॉट लेने का कैपेसिटी है, मैं पूरा 10 लॉट एक साथ खरीद लिया, नहीं कभी नहीं। आपके पास 10 लॉट लेने हम्म, का कैपेसिटी, आप पहले स्टार्ट करो 2 लॉट से, इसके बाद मान लो आपके अगेंस्ट में चला गया, तो जाके आप 3 लॉट और ऐड करो, उससे भी नीचे और ओके, चला गया तब बाकी 5 लॉट ऐड करो, तो आपका एवरेज बहुत नीचे हो जाएगा। अब अगर मान लो उधर से ही मार्केट घूम के ऊपर चला जा रहा है, तो आपका 2 लॉट ही बहुत पैसा दे देगा, आपको बाकी 8 लॉट डालने की भी जरूरत नहीं, उसका पैसा जाके आप किसी और स्टॉक में डाल दो। तब तक तो पता चल जाएगा कि नहीं वो जाने वाला है कि नहीं, तब तक हाँ पता चल ही जाएगा कि बाकी वही, के फैक्टर्स है। वही मैं बोल रहा हूँ कि आपके हम्म, पास अगर कैपेसिटी 10 लॉट लेने की है, आप 2 लॉट से चालू करना है, 10 लॉट पूरा जाके नहीं डालना। हम लोग रिटेलर वही करते हैं, हमारे पास 10 लॉट की हम्म, कैपेसिटी, हम दूसरे से उधार लाके 20 लॉट का ले लेते हैं, वो हम्म। गलत है ना। ओके, ना प्राइस लिख के रख देने का कि वो आएगा तभी मैं करूंगा, हाँ, नहीं या तो तो फिर नहीं अलर्ट लगा करूंगा। के रख दो सिस्टम पे, ट्रेडिंग व्यू पे हाँ, ऑप्शन नहीं, है अलर्ट का, अलर्ट लगा के रख दो, वो दिखाएगा उस टाइम पे जाके चार्ट देख के लेने का, सिंपल। उसके आजू बाजू, ओके, हाँ हाँ। बस। ओके, ठीक है। नेचुरल गैस में तो पता नहीं किधर भी चला जाता है, वो तभी तो ये हेज मैनिपुलेटिव करना है, बहुत जरूरी है। उसको हेज भी जरूरी है, प्लस परफेक्ट, मतलब ऑलमोस्ट उसी जगह के आसपास लेना ही जरूरी है। आइदर वीवैप के हाँ, पास सही लो, है। या 21 ईएमए के पास लो, या कोई सेटअप फॉलो करो, तो ही आप पैसा हम्म, बना पाओगे। नेचुरल गैस इज वेरी वोलेटाइल, वो गैस ही है ना, वोलेटाइल ही होता है। वो किधर भी दूसरे दिन सुबह तो किधर भी खुल जाता हो। वो ऐसा देखो, अभी आगे जाके ना 2027 तक ऐसे ही होगा, एक दिन आपको हम्म, सडन बुलिश कैंडल दिखेगा, खाली नेचुरल गैस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सारे कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूँ। एक दिन बुलिश कैंडल हम्म, दिखाएगा, नेक्स्ट डे रेड कैंडल दिख जाएगा, खुलेगा गैप डाउन, ओके। रेड कैंडल दिखा, आप बियरिश जाओगे, नेक्स्ट डे वो खुल जाएगा महा गैप अप और बुलिश कैंडल बना देगा, ऐसा ही चलेगा पूरा 2026 तक, सारे ये कमोडिटी बाकी के, सारे स्टॉक सब जगह पे ऐसे ही चलेगा। इसमें क्या है, अपना मार्केट टाइमिंग और उनका अलग है, यानी इसी ये भी बहुत प्रॉब्लम होता है। हाँ, ठीक है तो नहीं करने का ना, तो सोचो ही हाँ, मत इन सही सब है। का। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, एनीबडी एल्स? हेलो प्रीतम भाई, सॉरी हाय। मैं बहुत लेट ज्वाइन किया, अभी जस्ट ज्वाइन किया, ट्रैवल कर रहा नहीं नहीं, नो हूँ। इश्यूज। सॉरी, मैं अपने शायद डॉलर इंडेक्स कवर किया है कि नहीं किया पता नहीं। कुछ नहीं सॉरी कवर मैं किया, मैं लेट हुआ तो। सबसे बात कर रहा हूँ बस, किसका क्या क्या डाउट अच्छा है अच्छा मैं क्लियर कर रहा हूँ, कोई अच्छा कोई अच्छा। पूछ रहा है तो। तो डॉलर इंडेक्स का लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया, आपने बोले थे कि वो लो ब्रेक करने तक वेट करो, तो यस। वहीं पे कॉन्सेंट्रेट है। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, बट आप डॉलर इंडेक्स अभी भी अप मूव में ही है, वो ऊपर ही रुका हुआ है, फ्लैग पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना रहा है, ब्रेकआउट देगा तो 112 तक, 111 तक तो जा सकता है, 111 तक गया तो उसके बाद हम उसमें थोड़ा ब्रेकडाउन देख सकते हैं, बट नॉट बिफोर दैट। ओके, थैंक यू। तो अभी सिल्वर और गोल्ड में थोड़ा करेक्शन आ सकता है। हाँ आ सकता है, बट वो बाय ऑन डिप ही है,
हम आई थिंक सिल्वर का बात किए थोड़ी देर पहले, 2886 चल रहा है, तो 2769 तक आ सकता है जो प्रीवियस लो है उसका। तो उधर आए तो भी बाय करना है, ओके कुछ भी आए, मतलब नीचे बुलियंस नीचे आए बाय करना है, सिंपल। ठीक है ओके एक मिनट। थैंक यू प्रीतम भाई हाँ बताइए, बताइए और किसी को कुछ पूछना है? देखिए ये पूरा सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, आई विल अपलोड दिस वीडियो, एंड मैं आप लोग जो जो भी जब भी पूछ रहे हो उसके साथ मैं चार्ट भी ओपन करके देख रहा हूँ। तो आपने जब क्वेश्चन पूछा उस टाइम पे आप वीडियो में देख लेना वो चार्ट में मैं क्या देख रहा हूँ या क्या मैंने देखा, so you can श्योर correlate प्रीतम that. थैंक यू तो किसी और को कुछ पूछना है? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? सबको अलाउ कर दिया, अनम्यूट करके पूछिए। नथिंग, नो वन? ठीक है, तो फिर मैं मेरा व्यू बताता हूं आगे का क्या है। ऑलराइट, लेट्स ओपन विद डॉलर इंडेक्स ओनली। मैं चार्ट ओपन करके बोल रहा हूं, आप लोग बाद में देख लीजिएगा। डॉलर इंडेक्स हम लोग जो बात किए थे 105 से बाउंस किया था वो, और वो अभी मूव देके फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना रहा है। तो अगर ये फ्लैग का ब्रेकआउट होता है जो अपर है नियरली 108 के आसपास, 108 के ऊपर ही है, तो नियरली 108.5 के ऊपर जब जाएगा तो 111 112 तक वो जा सकता है। ऑलराइट, उधर से हम मे भी देख सकते हैं डिप। तो अगर, बट इतना प्रोबेबिलिटी है कि वो अभी नहीं जाएगा, मे बी वो इधर होल्ड करेगा, क्योंकि कल जो हम बात किए थे डाउ के बारे में, डाउ एक्चुअली एक लो, हायर लो बनाया है। तो हायर लो बनाया तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस लो को सपोर्ट लेके वो थोड़ा ऊपर जाएगा, और डॉलर इंडेक्स मे बी इट विल स्टे एट द सेम प्राइस फॉर 5 to 10 मोर डेज, 5 मोर डेज एक्चुअली, मतलब 5th तक या 7th तक अप्रोक्सीमेटली वो इसी जोन पे रहेगा। इसके बाद मे बी ऑल नैस्डैक, डाउ, एसएनपी एक लोअर डिप देगा, क्योंकि इसमें पूरा एक एसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बना है जिसका ब्रेकडाउन देके हम रीटेस्ट किए हैं। ऑलराइट, तो चार्ट में आपको दिख जाएगा नेक्स्ट, आप जब इसको एक बार रिव्यू करोगे। नैस्डैक में भी सेम है, मैं अप मूव देख रहा हूं, अप मूव के बाद एक डाउन मूव भी आएगा। उस हिसाब से अगर हम निफ्टी को भी देखें, हम लोगों ने मे बी एक लोअर लो का फॉर्मेशन दिया, बट वी हैव क्लोज्ड अबव दिस 20 दिसंबर का जो लो बना था उसके ऊपर क्लोज दिए। हम लोगों ने मंथली चार्ट में वी एक मिनट, हाइड ऑल, मंथली चार्ट में वी हैवंट ब्रोकन नवंबर का लो, बट पूरा बॉडी जो है वो नवंबर के हाई एंड लो के बीच में है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग ए वन मोर अप मूव टूवर्ड्स आवर जोन ऑफ 24042 से लेके 24242, और उधर से ये डिप देके हमारा जो टारगेट है टूवर्ड्स 22500 या 22222 इतना तक आएगा, और इस जोन पे हम लोग को सारे शॉर्ट्स निकाल देना है। If we are creating shorts, we should create in the zone of 24042 24242। वो कब भी आए हमको उधर उस जोन पे शॉर्ट बनाना है। ऐसा भी हो सकता है ये 24700 तक भी चला जाए, हमको पैनिक नहीं करना है। हमको शॉर्ट्स कहाँ का बनाना है,
क्योंकि वो भी टाइम देखना, अगर वो 10th जनवरी तक आता है तो हम जनवरी का स्प्रेड नहीं लेंगे, हम फरवरी का स्प्रेड बनाएंगे या मार्च का स्प्रेड बनाएंगे। ऑलराइट, तो वो टाइम पे डिपेंड करता है। अगर मान लो 15 तारीख तक आता है, जो हम सोच रहे हैं कि 15 तारीख को लो बनना चाहिए, वो जाके हाई बनाता है, एक स्विंग हाई बनाता है 24,500 या 24,700, तो हम वेट करेंगे अब टिल मार्च, क्या बोलते हैं, सोलिस्टिस तक, कि सॉरी मार्च में इक्विनॉक्स है, उधर तक हम वेट करेंगे 21 से 22 तारीख तक। मे बी अगर संक्रांति में हमारा लो नहीं बनता तो प्रोबेबली मार्च 21-22 के आसपास लो बनेगा। तो आई डोंट थिंक इट विल टेक सो मच टाइम, 3 महीना टाइम लेगा। मुझे जो लग रहा है कि लो संक्रांति तक या 20 तारीख के अंदर, जनवरी के 20 तारीख के अंदर बन जाना चाहिए। तो हम देखते हैं क्या होता है, बट आपको अभी फ्रेश शॉट्स नहीं करने हैं। ऊपर जाएगा आपको अगर दिखाएगा तो भी नहीं करना है। वो जो एक डायलॉग है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, शॉर्ट्स के लिए बुलावा आएगा बट जाओ मत, फंसो मत उस पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जो हम डेटा की बात किए थे, इट वाज ऑन, क्या बोलते हैं, FII-DIs, वेयर टोटली 86% 86% शॉर्ट्स पे थे। 86% इज ए क्वाइट गुड नंबर इन शॉर्ट्स। ठीक है, that's what we think they have covered their position, or maybe they will cover their position and bring it to a good level of 54-55 levels। और उधर से हमारे बंदे क्लाइंट्स जो बुलिश थे वो सब अभी बियरिश बनना चालू करेंगे और 54-55 लेवल्स पे जाके वो फिर से बुलिश बनना चालू करेंगे। और जब हम देखेंगे क्लाइंट्स बुलिश बनना चालू हुए, हमारे FIs का डेटा फिर से 54-55 से 60 की तरफ आना चालू करे इन शॉर्ट्स, हम हमारा शॉर्ट स्प्रेड बनाना चालू करेंगे। ये निफ्टी की बात है। एंड एज यू गाइज नो, 95% of my index trades are on Nifty. So that's how my view is on Nifty. तो अभी फिलहाल के लिए ये मेरा व्यू है। क्रूड में, नेचुरल गैस में फिलहाल शॉर्ट्स मत रहना, डिप्स पे ट्राई करे बाई करने का अगर डिप्स मिलता है तो, बट बी केयरफुल ऑफ दोज, क्योंकि नेचुरल गैस एंड क्रूड आर वेरी मैनिपुलेटिव। कोई भी न्यूज़ डाल के उसको हटा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है या गिरा दिया जाता है। बट आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है, सिल्वर में कीजिए। सिल्वर में भी एक छोटा सा डिप दे सकता है टुवर्ड्स 2773। गोल्ड में भी दे सकता है टुवर्ड्स प्रीवियस लो, प्रीवियस जोन ऑफ 2530 या 2560, इन दोनों के बीच में आना चाहिए। अगर आता है तो प्लीज बाय ETFs या फिजिकल गोल्ड या फिजिकल सिल्वर। फिजिकल लेके ज्वेलरी मत लीजिएगा, इट हैज टू बी बार और इट हैज टू बी कॉइन्स और वॉट एवर इट इज। डोंट लुक फॉर ज्वेलरी, क्योंकि ज्वेलरी में वो मेकिंग चार्जेस एंड फलाना डिमकाना लगा के वो लोग चूना लगाते। ठीक है, आइदर बाय ETFs और बाय फिजिकल इफ यू कैन, बट इन सब में इन्वेस्टमेंट कीजिए। प्लस अभी इसके बाद जो डिप आएगा, जो मैं बोले जा रहा हूं, डिप पे अभी तक अगर बाय नहीं किए तो प्लीज बाय कीजिएगा। और मेरा गिफ्ट आई थिंक आज अच्छा लगा आप लोगों को, बढ़िया सा ट्रेड मिला उस पॉइंट से, ऑलमोस्ट लाइक 200 पॉइंट्स मूव। तो वो लो जो बना है आज निफ्टी का, राइट, एक मिनट चार्ट निकालता हूं। ये जो लो बना आज 10:10 पर 23,460 का,
ये नेक्स्ट 5 से 6 दिन तक एटलीस्ट वो रहना चाहिए। ये 5 मिनट का अगर क्लाउड देखोगे, क्लाउड के ऊपर है, 15 मिनट के क्लाउड के पास है, बट एक पिवट है, पिवट को टेस्ट करना चाहिए जो कि है 23,721। उसके ऊपर अगर गैप अप होते हैं हम कल, या सस्टेन करते उसके ऊपर, तो ही हम ऊपर जाएंगे। मे बी इधर से डिप आए, डिप में फंसना मत, डिप में बाई ही करना। ठीक है, अगर मैं कल ना रहूं, कल मैं अपडेट ना करूं, तो ये मैं पहले से बोल दे रहा हूं। सो प्लीज लुक एट इट, और इफ यू वांट टू इग्नोर, इग्नोर फॉर एंटायर वीक। आज पैसा बनाया, बहुत अच्छा बनाया, छोड़ दो, एक वीक काम नहीं करना है। हमारा लेवल आएगा तब देखेंगे। पैसे को एंजॉय करो। और हाँ, एक चीज है, पैसे को पार्टी करने के लिए उड़ाओ मत। मतलब करना है करो, बट सिन चीजों पे डालना मत, जैसे अल्कोहल हो गया, सिगरेट्स हो गए, दो सिन प्रोडक्ट्स में कभी मत देना। उससे बेटर है आप छोटा सा ये अमाउंट लेके किसी गरीब को हेल्प कर दो, उसका न्यू ईयर अच्छा कर दो। उसका जो ब्लेसिंग आएगा आपको, दैट विल हेल्प यू इन अ वेरी वेरी लॉन्ग वे। गिव बिफोर यू गेट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गेट एंड आफ्टर यू गिव। मैं हमेशा यही बोलता हूं, पहले अपने मन से दे दो, और अपेक्षा मत करो कि कुछ पाओगे। वो कैसे घूम के आएगा आपके पास, वो आप भी सोच नहीं पाओगे। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। एंड आई आल्सो वांटेड टू से कि वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मे योर wealth, prosperity, health be squared as well as be cubed। पूरे आपके और आपके फैमिली का 2025 बहुत ही अच्छा हो। That's what I can say. Moreover, this thing will be uploaded also। आप लोगों को जो भी देखना है, आप स्क्रीन देख के उस टाइम पे वीडियो पे भी देख के उसके साथ लिंक कर सकते हो। कुछ पूछना है आप उसके कमेंट में भी डाल सकते हो, या आके आप हमारे ग्रुप में भी लिख सकते हो। सो एनीथिंग एल्स आप लोगों को पूछना है, किसी का मिस हो गया, मैंने आई थिंक क्लियर कर दिया मेरा जो व्यू है। आप लोगों का अगर कुछ है पूछना, आप लास्ट पूछ सकते हो। आई विल बी हियर फॉर सम मोर मिनट्स, क्योंकि मुझे भी बाहर जाना है। एनीथिंग? नहीं सर, क्लियर है, क्लियर है। बढ़िया है, क्लियर है तो बहुत बढ़िया है। एकदम लाइन में रहना चाहिए सबका। ठीक है, और आपने गाइड कर दिया ना, अभी क्लियर है। अभी आप कल नहीं रहोगे तो भी संभाल लेंगे। मैं बोलता हूँ कि छोड़ दो, मतलब एक हफ्ता, 5 तारीख तक छोड़ दो। अगर लेवल आता है ऊपर का तो शॉर्ट का देखो, लॉन्ग का तो अभी कुछ बनता भी नहीं है। सो अगर फिर भी करना है, मान लो ये 400 पॉइंट 500 पॉइंट खेलना है, ठीक है, करना है तो हेज लेके खेलो, डिप पे बाय करो, और ये लो प्रोटेक्ट हो, बस इसका ही लो, लो को स्टॉप लॉस बना के सर खेलो। डिप पे बुलपुट डाल देंगे तो हाँ, क्या 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 बोले कोई कोई अच्छा लो मिले वहां पे बुलपुट का स्प्रेड भाई? डाल के छोड़ देते हैं। हाँ, छोड़ दो, कोई वैसा ही अच्छा कर लो दो। मिलेगा, कोई डिप मिलेगा तो बुलपुट थर्टी स्प्रेड डाल एट देंगे ऐसा। परसेंट रिट्रेसमेंट जो भी आए वो भी यूज प्रॉफिट करो, ही हो। फिबोनाची डालो, 38% रिट्रेसमेंट यूज करो। 38% रिट्रेसमेंट सेव हुआ तो भाई 61.8% का स्टॉप लॉस लगा के खेलो उसको। सिंपल एज दैट। मैं कितना सिंपल चीजें बताऊं ना आप लोगों को, वो कोई नहीं बताएगा। कॉम्प्लिकेट करके ओआई देखो, ये देखो, वो देखो। अरे मैं बोलता हूँ प्राइस एक्शन देखो, प्राइस भी बहुत कुछ बोलता है। प्राइस के थ्रू खेलो, वो तो सेकेंडरी टूल्स है, वो प्राइमरी टूल नहीं है, बट मैच करके करना है। ठीक है, तो चलो, विल क्लोज अप। आप लोगों को देखना है, आप लोग वीडियो देख लेना। आई विल अपलोड इट मे बी इन फ्यू मिनट्स। मे बी ये टाइम लगेगा अपलोड होने में, या अलग से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आप लोग देख लो टाइम लगा के। एंड हैव ए गुड अपकमिंग न्यू ईयर। इट शुड बी गुड फॉर ऑल ऑफ यू,
because it's a very good number. 45 का स्क्वायर है. ऑलराइट, चलो मिलते हैं परसों लाइव में. कल कुछ दिखता है तो मैं बताऊंगा, नहीं तो एंजॉय करो. ऑलराइट, हैव अ नाइस सर टाइम. अगर डेल्टा पॉजिटिव मिले तो अपडेट कर दीजिए. अगर मैं देख रहा हूं तो अगर मैं देख रहा हूं तो ठीक है. ठीक है सर, चलेगा. चलो चलो चलो, बाय, टेक केयर, ठीक है चलेगा एंजॉय. सर. ओके सर. थैंक यू. बाय 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 थैंक यू. थैंक यू सर. बाय Bye, sir. बाय बाय. थैंक यू भाई.